اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس کے بارے میں قریباً یہ تیسرا جمعہ ہے، 3 جمعے سے اس پہ بات ہو رہی ہے، اور ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ آپ کی فہم، آپ کی فراست کے مطابق، آپ کی دانائی، آپ کے علم، آپ کی معلومات کے مطابق میں نے مسائل شرعیہ قربانی سے متعلق تمام کو اپنے اعتبار سے آسان لب و لہجے میں نے 2 جمعے تک تقریباً رکھا۔ آج کے دن کوشش یہ رہے گی کہ آج نماز عید سے پہلے جو مسائل ہوتے ہیں، چونکہ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ نماز 1 رکعت تو ہوتی نہیں ہے، کم سے کم نماز 2 رکعت ہوتی ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں؟ ہم نے تو کم سے کم نہیں دیکھا کہ عید کی نماز کے بعد یا جمعے کی نماز کے بعد کوئی شخص کسی کی 1 رکعت رہ گئی ہو اور وہ اس دوسری ہو جو رکعت رہ گئی تھی اس کو پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہو۔ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو، ابھی ہماری نظر میں تو ایسا نہیں گزرا ہے۔ تو کیا مطلب سب کو نماز مل جاتی ہے؟ کسی کی تو رہتی ہوگی نا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ 1 ہی رکعت پڑھ لیتے ہوں گے لوگ؟ اس بارے میں بات کرنا ضروری ہے نا۔ نماز 1 رکعت تو ہوتی نہیں ہے، نماز تو کم سے کم 2 رکعت ہوتی ہے نا۔ اب جمعہ اور عید میں تو کسی کو نہیں دیکھا ہم نے کہ کوئی کسی کی 1 رکعت گئی ہو۔ مطلب تو یہی ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں ہم نے نماز پوری کرتے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد نماز پوری کرتے ہوئے ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ جن کو معلوم ہے وہ کرتے ہوں گے، الگ بات، ہم نے بتایا۔ اگر کچھ لوگ کرتے بھی ہوں گے تو مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں، بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں اس مسئلے سے کہ کرے کیا۔ اگر کسی کی 1 رکعت نماز رہ گئی، یا مان لو وہ سیدھے دوسری رکعت پہ پہنچا، یا تشہد کے وقت میں عید یا جمعہ میں جب امام تشہد میں ہے، کوئی اس وقت بھی تو پہنچ سکتا ہے نا، تاخیر تو ہو ہی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرے؟ یہ کیے۔ دوسری بات کہ امام نماز پڑھا رہے ہیں، جمعے کی ہو یا عید کی، اس میں آپ دیکھیں گے سجدہ سہو کی نوبت بہت کم آتی ہے۔ جمعہ اور عیدین میں تو بالکل بھی نہیں، خاص کر کے چونکہ حکم کیا ہے نا کہ اگر نماز میں واجبات بھولے سے ترک ہو جائے، جو واجبات نماز ہے، تو اس میں حکم یہ ہے کہ سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو کے ساتھ نماز پوری کرے۔ اور اگر کسی نے واجبات نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی سرے سے۔ عید بقرعید اور جمعہ کے بارے میں حکم تھوڑا سا اس میں ہلکا ہے، خفیف ہے، اس میں تخفیف ہے تھوڑی۔ وہ تخفیف کیا ہے کہ نماز عید میں کیونکہ جماعت بڑی لمبی ہوتی ہے ہر جگہ، قریباً اگر پوری دنیا کی بات کر لیں، 2 ارب اگر مسلمان ہیں، تو ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ کسی کی کسی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے یا سفر میں یا کسی وجہ سے رہ جائے سو رہ جائے، ورنہ عید کی نماز تو کوئی نہیں چھوڑتا۔ عید کی نماز سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی نماز عید کا اہتمام ہوتا ہے، چاہے وہ عیدگاہ ہو، چاہے مسجد ہو، یا کوئی دوسری جگہ ہو، کہیں بھی، وہاں پہ لوگوں کی تعداد بہت کثیر تعداد میں ہوتی ہے، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر امام سے کوئی واجبات نماز بھولے سے رہ جائے تو فقہاء نے یہ فرمایا کہ سجدہ سہو نہیں ہے، سجدہ سہو نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے بات رکھوں یہ کیوں نہیں ہے، حالانکہ اور نمازوں میں ہے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھائیں، واجبات نماز اگر بھولے سے رہ جائے سجدہ سہو ہے، فجر پڑھائیں، عشاء پڑھائیں، مغرب پڑھائیں، عصر پڑھائیں، اس میں واجبات نماز اگر بھولے سے ترک ہو جائے، آپ سے رہ جائے ادائیگی سے، تو سجدہ سہو ہے، مگر عید میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب ہماری پیچھے 1 منٹ کی گفتگو میں جو ہم نے یہ کہا آپ کو کہ عید کی بقرعید کی نماز میں
करीबन करीबन सारे मुसलमान पहुंचते हैं और एक लंबी तादाद होती है। और अक्सर हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग नमाज के मसाइल से गाफिल है। अब सजदा सहव के ताल्लुक से बहुत सारे मुसलमानों को पता भी नहीं कि सजदा सहव क्या चीज है। होगा ये ना कि अगर इमाम से ईद की नमाज में कोई वाजिबात नमाज में किसी तरह की कोई कमी रह गई, अगर वाजिबात नमाज अदा ना हो पाए, कोई एक वाजिब अगर रह गया तो, और इमाम अगर सज्जा सहव करे तो सज्जा सहव कैसे करता है इमाम? जाहिर है एक तरफ सलाम फेरते हैं दाहिने तरफ, फिर सज्जा सहव। अब इसमें क्या होगा, ईद की नमाज में चूंकि कसीर तादाद में लोग पहुंचते हैं, अगर इमाम ने दाहिने तरफ सज्जा फेर के दोबारा सज्जा में यानी सज्जा सहव की सलाम फेर कर दाहिने तरफ अगर इमाम ने सज्जा करने की कोशिश की सज्जा सहव, तो बाकी जो दूसरे लोग होंगे ना, जो पहली दूसरी मरतबा आए नमाज पढ़ने के लिए, जो सिर्फ ईद बकरीद में आते हैं, वो सब के सब दूसरी तरफ सलाम फेर देंगे, सज्जे में कोई भी नहीं जाएंगे, नमाज सबकी खराब होगी। इसलिए इसका माहौल हो जाएगा एक हंगामा का कि इसमें क्या हो गया। इसीलिए हुक्म यह है कि अगर वाजिबात नमाज में किसी तरह की कोई कमी होती है तो सज्दा सहव नहीं है, ये मुआफ है शरीयत की तरफ से। ये बात आप लोगों के सामने इसलिए बताई जा रही है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। तो अगर किसी के साथ इस तरह का हादसा हो जाए किसी इमाम के साथ, तो कोई उन पर दबाव भी ना बनाए, कोई झगड़े भी ना, कोई ऐसा भी ना कहे, कोई वैसा भी ना कहे। बाकी जो लोग नमाज पढ़ाते हैं, नमाज ईद जो पढ़ाते हैं, जाहिर है उन्हें इतने मसाइल तो आएंगे और आते होंगे और आते ही है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम ईद की नमाज पढ़ा रहे हैं तो हमें ईद की नमाज के मसाइल से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। और जो भी पढ़ाते हैं वो पहले मसाइल नमाज ईद पहले वो पढ़ लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, किस सूरत में क्या हुक्म है, इन मालूमात ये तो पढ़ाने वाले कर लेते, लेकिन आपके जहन में भी किसी तरह का खलजान नहीं होना चाहिए ये चीज। इसका जवाब यहाँ पे हो गया कि ईद और बकरीद में अगर वाजिबात नमाज में कोई कमी रह जाए तो इसमें सज्जा सहव नहीं है। एक बात ये। दूसरी चीज, असल में जो नमाज किसी की एक रकत अगर हो, हमने बताया नहीं कि ऐसा तो है ही नहीं कि किसी की एक रकत नमाज नहीं जाती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा लग रहा है जैसे सबको नमाज मिल जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी की जाती भी होगी तो हमें लग रहा है कि वो एक ही रकत पढ़ते होंगे, लेकिन नमाज एक रकत तो नहीं होती है ना। इसका जवाब मैं दूंगा थोड़ा सा रुक के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम हो जाए। उससे पहले मैं कुछ आपके सामने बकरीद के रोज कुछ मुस्तहबात, कुछ जरूरी चीजें क्या है नहीं है, वो चीजें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। देखिए, जुमा और ईद करीबन करीबन दोनों नमाज एक ही तरह है, थोड़ा सा फर्क है जुमा और ईदैन में। पहला फर्क यह है कि जुमा में खुतबा वाजिब है। अगर कोई खुतबे जुमा इमाम ना पढ़े तो जुमे की नमाज मुकम्मल अदा ही नहीं हुई मुकम्मल। और ईदैन में खुतबा सुन्नत है, मगर हाँ खुतबा सुन्नत है मगर हाँ पढ़ना सुन्नत है। ईद की नमाज में खुतबा का होना सुन्नत है, लेकिन अगर खुतबा पढ़ा जाए तो उसका सुनना वाजिब है। ये आपके जहन में रहे ये बात, चाहे वो जुमे का खुतबा हो चाहे ईद बकरीद का खुतबा हो, सुनना बहरहाल वाजिब है। फुक़हा ने यहां तक लिखा है कि अगर दूसरा भी अगर खुतबा हो, जैसे खुतबा निकाह, वो भी सुनना जरूरी है। तो एक फर्क यह है कि ईदैन में जो खुतबा है वो सुन्नत है और जुमे में जो खुतबा है वो वाजिब है। और दूसरा ये कि जुमे में खुतबा नमाज जुमा से पहले होता है और ईदैन में बाद में होता है। इसमें अगर ईदैन में इसका उल्टा अगर हो भी जाए ना, जैसे पहले खुतबा पढ़ दिया किसी ने, बाद में नमाज हो रही है तो नमाज हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन ये खिलाफे सुन्नत है, ये तरीका नहीं। तरीका यही है कि पहले ईद की नमाज हो फिर खुतबा हो। ईद उल फित्र में और ईद की नमाज, बकरीद की नमाज में, इन दोनों नमाजों में थोड़ा सा फर्क है मुस्तहबात वगैरह को लेकर। बाकी नमाज बेअनी ही बिल्कुल एक ही तरह है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके जो उमूर मुस्तहबात है, जो इस्तेहबाबी उमूर है, जैसे
कुछ खा लेना। ईद की नमाज में सुन्नत यह है कि आप ईद की नमाज पढ़ने जाओ तो कुछ मीठा खाकर पढ़ने जाओ ईदगाह। और बकरीद की नमाज में मुस्तहब ये है कि आप बेगर खाए जाएं, जब नमाज से फारिग हो जाएं तब आप खाएं। ये कुछ फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि देखिए, ईद की नमाज में ताख़ीर मुस्तहब है, लेट करके पढ़ना, और बकरीद की नमाज में जल्दी पढ़ना मुस्तहब है। और हाँ, अभी जो हालात चल रहे हैं सारे लोग वाकिफ़ है, ऐसी सूरत में यह है कि अब मुस्तहब यह है कि जितनी जल्दी हो सके आप बकरीद की नमाज पढ़ लें। फिर उसके बाद हर आदमी के सर पे, हर मुसलमान के सर पे एक जिम्मेदारी रहती है कि आपको कुर्बानी करनी है। फिर एक बात ये भी है कि इसमें कुछ खाया पिया भी नहीं जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि ईद में अगर कुछ छुआरे या कुछ मीठा खीर या शीरनी वगैरह खा के जाना सुन्नत है, तो बाकी इस मरतबा ये है कि बाद में जो खाने का हुक्म है, तो ऐसा नहीं कि आप चाय पी के या बीड़ी पी के या सिगरेट पी के या तंबाकू या कुछ खा के आ सकते हैं। कुछ भी नहीं आप खा के आएंगे। मगर यह है कि इसको रोज़ा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि रोज़ा जो है, रोज़ा का शरीर रोज़ा जो है, वो रोज़ा है तुलूए फजर सादिक, यानी जिस वक्त फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है उस वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुके रहने का नाम कसदन, उसको रोज़ा कहते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दें, आपके सामने हम रख दें बहुत, कि पूरे साल में इंसान कभी भी चाहे रोज़ा रख सकता है, कभी भी, सिवाय 5 दिन के। पूरे साल में 5 दिन आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। एक तो ईद के रोज़ आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, मकरूह तहरीमी करीबन हराम है, नहीं रख सकते हैं। अब क्यों है मैं भी बता रहा हूं आपको। पहला दिन हो गया, 4 दिन यहां पे है, 10 जिल्हिज्जा, 11, 12, 13, ठीक है, याद रहेगा, 10, 11, 12, 13 कुर्बानी के महीने में। ये 4 दिन, एक दिन ईद, 5 दिन हुए टोटल। ये 5 दिन आप पूरे साल में रोजा नहीं रख सकते हैं। क्यों? ये अल्लाह की तरफ से जियाफत के अय्याम है, जियाफत के दिन है, मेहमानी के दिन है। उस दिन ना चाहते हुए भी अल्लाह की जो ये मखलूक है, बनी आदम, इनका खुराक खाना पीना बहुत ही उम्दा और आला होता है। हर आदमी का, चाहे उसकी माशी हालत जैसी भी रहे, लेकिन अच्छा रहता है। इसकी वजह एक ये भी है कि आप एहतमाम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से जियाफत का दिन है, मेहमानी के दिन है। ये 5 दिन जो हमने बताया इन दिनों में। बाकी उसके अलावा जो है रोज़ा आप कभी भी रख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब जब रमज़ान का महीना आएगा तो उसमें हम तफसील से बताएंगे कौन सा रोज़ा है, कब रखना है, कौन सा सुन्नत है, क्या है। हाँ, एक बात और बता दें कि आज करीबन जिल्हिज्जा की 8 तारीख है नहीं, 9 तारीख को अगर कोई, 8 तारीख के बारे में भी फजीलत आई है, 9 तारीख को अगर कोई रोज़ा रखे तो इसमें भी बड़ा सवाब है। कल के रोज़ अगर कोई रोज़ा रखना चाहे, जिल्हिज्जा के रोज़ रख सकता है, सुन्नत है अकाबिरीन की, रखने में बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत फजीलतें हैं। और हमने फ़र्क बता दिया कि ये 5 दिन ही नहीं रख सकते हैं, उसके अलावा आप मुकम्मल पूरे साल में कभी भी आप रोज़ा रख सकते हैं। कुछ लोग हर पीर को रोज़ा रखते हैं, खुद हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है हर पीर को रोज़ा रखना। हुजूर खुद रखा करते। हुजूर से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर पीर को क्यों रोज़ा रखते हैं? तो आपने फरमाया कि मैं इसी दिन पैदा किया गया, जिसकी वजह से मैं रोज़ा रखता हूँ। ये बहुत बड़ी दलील है खुशियाँ मनाने की। ईद और बकरीद की बात आती है ना, बहुत सारे सवाल आते हैं, झंडा लगाना कैसा है, ईद मनाना कैसा है, ईद मिलाद मनाना कैसा है, ये कहाँ से साबित है। जब वो महीना आएगा तो मैं बताऊंगा कि ये इसकी खुशी, सरकार की विलादत की खुशी न सिर्फ हम लोग मना रहे हैं, सरकार की विलादत की खुशी सहाबा ने भी मनाई, खुद हुजूर ने मनाई, उससे बढ़कर पूरी कायनात के खालिक व मालिक अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने खुशी मनाई है। और इसका पूरा एहतमाम हुआ है। जब वो महीना आएगा तो हम बताएंगे इंशाअल्लाह, पूरे दलाइल के साथ इंशाअल्लाह। तो और उसके अलावा एक अय्याम बीज के रोजे बोलते हैं, हर चांद की 13, 14, 15 3 दिन, इसमें भी बड़ा सवाब है, बहुत ज्यादा। हर चांद के यानी हर महीने में 3 दिन,
चांद की 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख। लेकिन अब सवाल ये कि अगर अब चांद की 13 तारीख कुर्बानी में आप 13 तारीख को रख नहीं सकते, वो आपको छोड़ देना है, 14 और 15 को रखना है, आपको सवाब बराबर मिलेगा। 2 ही दिन रखना है और आपको पूरे 3 दिन का सवाब मिलेगा। एक चीज ये, किसी को अगर हर जुमेरात या हर पीर को अगर रोजा रखने की आदत है, वो हर पीर को अगर रोजा रखते हैं, जैसे हुजूर रखा करते थे, अगर किसी सुन्नत पर अमल करने की वजह से कोई अगर रख रहा है, और पीर ही को, जैसे इस बार पीर को रोजा नहीं रख सकते हैं क्योंकि 11 तारीख हो रही है, उस दिन रोजा रखना मकरूह तहरीम करीबन हराम, तो उस दिन आप रोजा नहीं रखेंगे। अगर आप हर पीर को रखते थे रोजा और आपके मामूल में ये चीज है, तो इंशाअल्लाह आपको इस बार बगैर रखे उसका सवाब मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक चीज रखूं जो मैंने पहले सवाल किया था, करीबन लोग अब आ चुके हैं कि नमाज ईद या कोई भी नमाज हो, एक रकअत तो होती नहीं है, लेकिन आमतौर पर उससे पहले मैं मुनासिब समझूंगा कि आपके सामने ईद की नमाज का जो तरीका होता है, वो ईद के वक्त में बताना, लोगों तक पहुंचाना, ये बड़ा मुश्किल होता है। ईद की नमाज कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले यह है कि आपको नियत करनी है नमाज ईद उल अजहा की 6 जायद तकबीरों के साथ। नियत की मैंने 2 रकअत नमाज ईद उल अजहा की 6 जायद तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। कुछ आपको नियत सिर्फ ये करनी है कि मैं ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के लिए नियत बांध रहा हूं, या मैंने नियत की ईद उल अजहा की नमाज की, 2 रकअत ईद उल अजहा की नमाज की। ये नियत तो काफी है, नियत दिल के इरादे का नाम है। जो अल्फाज हम बोलेंगे बेअनी वही बोलना, या जो अरबी सिस्टम, जो अरबी नियतें आई हैं, वो जरूरी नहीं कि आप वही कहें। नियत दिल के इरादे का नाम है। आप घर से चल के आए, यहाँ जो भी आप खड़े हुए, आने के बाद आप यहाँ नमाज के लिए लोग खड़े हुए, सारे लोग खड़े हुए, उसमें आपकी आप उस इरादे से खड़े हुए, आपकी नियत हो गई। लेकिन उसके बाद यह है कि अब आप नमाज पढ़ने में क्या करेंगे? सबसे पहले तकबीर तहरीमा बांधेंगे और फिर उसके बाद सना पढ़ने का हुक्म है, आप भी पढ़ेंगे, इमाम भी पढ़ेंगे। फिर दूसरी तकबीर होगी जो पहली जायद तकबीर होगी। अब 3 तकबीरें लगातार होगी और 2 तकबीरों में हाथ को लटकाए रखना है, हाथ उठाना है, अल्लाह अकबर। बाद की 2 अब पहली तकबीर में आपने नियत बांध ली, अब दूसरी, तीसरी और चौथी की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें से 2 मरतबा आपको हाथ बांधना नहीं है, अल्लाह अकबर करके हाथ लटकाए रखना है 2 बार। तीसरी मरतबा में आपको हाथ बांध लेना है। अब इमाम तिलत सूरह फातिहा पढ़ेंगे, तिलत करेंगे, पहली रकअत मुकम्मल होगी, दूसरी रकअत के लिए उठना है, तो फिर इमाम सूरत पढ़ेंगे, तिलत करेंगे। उसके बाद रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें फिर हाथ उठा के कहना होगा, और उस वक्त तीनों मरतबा आपको हाथ को खोले रखना है, अल्लाह अकबर 2 3 मरतबा। चौथी मरतबा इमाम के साथ आपको अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में चले जाना है। इस तरह नमाज पूरी होगी। अब देखिए, और नमाजों के मुकाबले में ईद और बकरीद की नमाज में 6 तकबीरें जायज होती है, जिसमें आपको हाथ उठाना रहता है। यह आपको तरीका समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज क्या है कि नमाज और ईद में एक फर्क ये भी है कि नमाज ईद और नमाज जुमा में एक फर्क ये भी है कि नमाज जुमा में अजान और इकामत दोनों, और नमाज ईद में नमाज चाहे ईद हो या बकरीद हो, ना इसमें अजान है ना इकामत है। बस इतना सा कहने की हाजत है कि अस्सलात व जामिया, ये आप कह सकते हैं। एक बात हम आपके सामने रख देते, टाइम हो गया है। वो क्या है कि नमाज ईद में अगर किसी शख्स की 1 रकअत रह जाए तो क्या करना है? 1 रकअत, पहली रकअत में इमाम के तकबीर कहने के बाद मुक्तदी शामिल हुआ तो उसी वक्त 3 तकबीरें कह ले। इमाम ने तकबीर कह दी, अब तिलत शुरू हो गई, अब कोई शख्स आया तो क्या करे? वो जो 3 तकबीर कहना था जायज, एक तो आपने कहा कि हाथ नियत बांध ली, इमाम तो पहले ही आए, वो तो पहले से नमाज शुरू में, अब तिलत चल रही है, अब आप क्या करेंगे? अभी आए आप जब तिलत शुरू हो चुकी है, तो कहते हैं कि नियत बांधने के बाद वो फौरन पहले उसी वक्त 3 तकबीर है, और बिल्कुल उसी तरह हाथ उठाकर, जोर से नहीं, आपको आहिस्ता कहना है। ये 3 तकबीरें आपको कह लेनी है। उसके बाद अगर कोई शख्स उस वक्त आया जबकि इमाम रुकू में है, पहली रकअत में उस वक्त आया इमाम रुकू में है, तो अब हुक्म यह है कि अगर अभी फौरन इमाम साहब रुकू में गए हैं, अभी फौरन गए, तो आप खड़े खड़े 3 तकबीर जल्दी जल्दी कह लें और फिर उसके बाद आप रुकू में जाए। और अगर आपको लग रहा है कि अगर हम तकबीर कहेंगे खड़े होकर तो इमाम नमाज रुकू से सर उठा लेंगे, तो हुक्म यह है कि आप रुकू में चले जाएं और रुकू में जाकर आप उन तकबीरों को कहें जो 3 तकबीर रह गई आपकी,
मगर यह है कि रुकू में आपको हाथ नहीं उठाना है, आपको हाथ जैसे और रुकू करते हैं रुकू ही करना है, बस 3 तकबीर आपको कह लेना है। अब सवाल यह है कि सुभान रब्बियल अज़ीम कब कहे, तो ये चूंकि कहना नफल है इसलिए मुस्तहब है, आप 3 तकबीर पहले कहेंगे या आप कह लें। अगर आप कह लिए तो ठीक है, और अगर नहीं कह पाए, एक ही कहे थे कि इमाम तक रुकू से सर उठा लिए तो 2 तकबीरें साकित हो गई, कोई हर्ज नहीं, आपको नमाज वो रकत मिल गई। आप समझ पा रहे हैं, बात समझ में आ रही ना, कि आपको रुकू में कह लेना मगर उसमें हाथ नहीं उठाना है। 1 मरतबा कहने का मौका मिले तो 1 तकबीर कहनी है, अगर 2 मरतबा मिले तो 2, 3 मरतबा मिले तो 3, उसके बाद मौका मिले तो आप तस्बीह पढ़, ना मिले तो इमाम के साथ आप इमाम के मुताबात करेंगे। ये तो यह है कि आपको रकत मिल गई बहरहाल। अगर 1 रकत मुकम्मल रह जाए आपकी तो नमाज 1 रकत नहीं होती, जैसा हमने पहले कहा। तो आपको अपनी नमाज जैसे और नमाज में आप पूरी करते हैं, अपनी नमाज पूरी करेंगे तो बिल्कुल ऐसी पूरी करेंगे जैसे इमाम के साथ आप पहली नमाज पढ़ते हैं कि आपको खड़े होना है तो उसके बाद 3 तकबीरें कहनी है, फिर जाके जो है आपकी नमाज पूरी होगी। अच्छा, ये सूरत अगर दूसरी रकत में हो जाए, 1 रकत तो निकल गई है, अब दूसरी रकत में आए जब इमाम रुकू में है तो वही तफसील है जो हमने पहले में बताया। और अगर दोनों रकत आपकी रह गई, आप तशहुद में आए तो अपनी नमाज आप बिल्कुल खड़े होकर पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं। अब सवाल ये कि मान लेते हैं आपकी नमाज ही खत्म हो गई, नमाज मिली ही नहीं ईद की, तो क्या करें? उसका जवाब यह है कि आप कोशिश ये करें कि अगर कहीं और ईद की नमाज हो रही है, उसका टाइम है, जैसे आज ऐलान हो जाता है हमारे यहाँ 7 बजे है और जगह पे 7:15 बजे, कहीं 7:30 बजे, आप वहां चले जाए, आप वहां चले जाए। अगर वहां भी ना मिले तो क्या करना है? तो कहते हैं इसी सूरत में आप नमाज ईद की बजाय अब अकेले या तन्हा आप नमाज ईद नहीं पढ़ सकते। अब हुक्म यह है कि आप थोड़ी देर के बाद 4 रकत चाश की नमाज पढ़ लें। और हाँ, एक हुक्म यह है कि औरतें ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगी। अगर औरतों को पढ़नी भी है तो वो चाश की नमाज पढ़ सकती है, वो भी नमाज ईद हो चुकने के बाद, उससे पहले नहीं, नमाज ईद से पहले नहीं। यहां तक हमने बात आपके सामने रख दी, कुछ बातें रह रही है, इंशाअल्लाह ईद के रोज आप लोग कोशिश करेंगे, जल्द आएंगे, जो बातें रह गई है हम उसमें पूरी कर लेंगे। और एक ऐलान यह है कि अपने यहाँ अपनी मस्जिद में जो ईद का वक्त रखा गया है वो जमात का वक्त 7 बजे है, 6:40 या 45 मिनट पे तकरीर शुरू हो जाएगी। सभी हजरात को ऐलान पहले इसलिए किया जाता है कि आप लोग वक्त मुकर्ररा पर, उस दिन ये कोई ऐसी नहीं कि सुस्ती होनी चाहिए, पहले ही आप आ जाए, क्योंकि आपके सर पे भी जिम्मेदारी रहती है, कुर्बानी करनी और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो आप कोशिश करें, 7 बजे वक्त है, फिर जहां तक बात तय पाई है कि उसमें फिर किसी का इंतजार या ऐसा मामला नहीं होगा, क्योंकि और जगह भी नमाज होती है। आप कोशिश करें कि 6:30 बजे से पहले आप मस्जिद में पहुंच जाए। बोलने में किसी तरह की लग्जुश हुई हो तो सभी हजरात इस्तिगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। न्यूज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे।